का सेकंड चैप्टर द एड्रेस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। दिस चैप्टर इज़ ए वेरी टचिंग स्टोरी। द एड्रेस, एज द नेम सिग्निफाइज, इट इज़ वेरी टचिंग स्टोरी ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट। तो आप ये देखेंगे कि इस स्टोरी में एक साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट इसमें ग्रो होता है। This is the story of a 15-year-old girl who lives in Holland, and this chapter is written by Margot Minko. So this story is of the 15-year-old girl who lives in Holland, and when the Holland is in the war condition, this is the story of the Second World War. तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है उस समय की ये स्टोरी है ये। So the narrator joined the Second World War when Holland was fighting for its liberation. अपने लिबरेशन के लिए संघर्ष कर रहा होता है ये देश। So we find that this girl of 15-year-old, because she is living in some hostel far from her own city, she returns home during the war, first half of the war, जब आधा युद्ध समाप्त हो चुका होता है तो वो अपने घर पर लौटती है। And she comes home for a few days, and when she comes home she notices some change in the room. वो ये पाती है कि उसके घर की चीज़ों में कुछ बहुत सारा चेंज है। She missed various things, बहुत सारी चीज़ें घर से गायब हैं। She asked her mother where these old things have gone. The mother then told her, उसकी माँ बताती हैं, that how the things had been taken away by her old friend named Mrs. Dodling. कि मदर कहती हैं कि उनकी एक फ्रेंड है मिसेस डॉडलिंग, वो ये घर का सारा सामान ले गई हैं। और उसकी मदर ये भी बताती हैं, she lives very far away and whose address is हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो वो अपनी बेटी को ये एड्रेस बताती हैं कि उनका एड्रेस है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द गर्ल डज नॉट लाइक दिस डीलिंग बिकॉज मिसेज डॉर्लिंग, शी हैज़ नॉट सीन मिसेज डॉर्लिंग before some time, and why she had renewed the contact, why she has came in contact with her mother. So she does not like all these things. When the war is over, और जब युद्ध पूरा हो जाता है, when the liberation of her country, after the liberation of her country, she again comes to her home, but one big incident, one very shocking incident has been happened. Her mother is no more now. उसकी माँ अब जीवित नहीं है। So she comes, and when the narrator, the girl, start missing her things taken away by Mrs. Dodling, again she wanted that those things should be returned. वो चाहती है कि वो सारी चीज़ें जो ये मिसेस डॉर्लिंग ले गई हैं तो वो उनके घर पे वापस जाए, वो सारी चीज़ों को उनको वापस लाए। Because she wanted to see them, touch them and remember them. उसको एड्रेस भी थोड़ा सा, she had a vague idea, she had a very vague idea about the address of Mrs. Dodling. So she determines that she would go to her home. Mrs. Dodling के घर वो जाएगी। She made her way to Mrs. Dodling house by train. ट्रेन से वहाँ वो पहुँचती है वो। And when this elderly woman, Mrs. Dodling, watches her, she is very much taken aback, very much surprised to see her. वो देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं उसको। She is very much confused, very much disturbed to see her. By the way, she knowingly refused to recognize her. और जब वो लड़की उनसे ये कहती है कि आप मुझे जानती हैं, पहचानती हैं, तो वो सीधे सीधे रिफ्यूज़ कर देती है, that I don't
recognize you, I don't identify you. यहाँ तक कि वो she kept the door only half open. She does not want that this girl should enter inside her home. लेकिन लड़की एक चीज़ से पहचान जाती है, that she has came on the right address because this woman was bearing the mother's green cardigan. क्योंकि वो उसकी मदर का वो ग्रीन कार्डिगन ये मिसेस डॉर्लिंग पहने हुए हैं. She half hid herself behind the door and she exclaimed also, have you come back? तुम कैसे वापस आ गई हो तुम यहाँ पे? इस बात पे वो आश्चर्य करती है. And then she refused to talk to the narrator, the girl. The narrator looked at the nameplate again. ये गर्ल है जो नेम प्लेट की तरफ देखती है. First of all, she thought that she had reached on the wrong address, but she was right because the address was right. There was the nameplate again. Marconi Street has been written, Mrs. Dowling name has been written, and the house number 46 has been written. So she thought that she had reached on the right address. वो जान जाती है कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे पहुंची है. Because now the woman refused to identify her, she has no alternative only to return to her home. And when she walked slowly back to the station, she thought about her mother who had given her the address years ago. ट्रेन में बैठी हुई अब उसको ये ध्यान में आता है उसकी मदर ने ये एड्रेस उसको दिया था फर्स्ट टाइम जब वो आई थी घर पे. एंड मिसेस डॉर्लिंग हैड टेकन अवे ऑल द प्रीशियस एंटीक प्लेट्स, सिल्वर क्रॉकरी, लार्ज बेसेस, जो भी चीज़ प्रीशियस चीज़ है उसके घर की, कॉस्टली चीज़ें हैं, वो सारी ले जाके अपने घर पे ले जा चुकी हैं. और आपने ये देखा कि किस तरह से वो अब पहचानने से ही उसको इनकार कर देती हैं. और केवल उनका प्रिटेंशन ये था, हर प्ली वाज दैट शी वुड सेव ऑल द नाइस थिंग्स, कि वो इस घर की सारी चीज़ें एक एहसान करके वो अपने घर पे वो ले जा रही हैं. आफ्टर हर फर्स्ट फ्रूटलेस विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, शी डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. तो जब ये वार ओवर हो जाता है जैसे मैंने बताया आपको, तो वो दोबारा जब अपने घर पे आती है तो फिर से एक बार वो कोशिश करती है. शी डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. तो फिर से जब वो 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे पहुंचती है, अब की बार दैट लेडी वाज नॉट प्रेजेंट. दिस टाइम ए गर्ल ऑफ 15 ईयर ओपन द डोर ऑफ द सेम एज ऑफ हर. हर मदर वाज नॉट एट होम. तो जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला वो लगभग 15 ईयर्स की है, उसी की एज की है. वो कहती है कि मेरी मदर घर पे नहीं है. द नरेटर, द गर्ल डिसाइडेड टू वेट. उसने ये डिसाइड किया कि वो घर पे ही रुकेगी, वेट करेगी. शी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. और जैसे ही कमरे में वो अंदर घुसती है वो देखती है कि उसके घर की सारी चीज़ें उस घर में प्रेजेंट है. शी नोटिस्ड दैट द हैवी कैंडल होल्डर नेक्स्ट टू द मिरर वाज प्रेजेंट. शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल फैमिलियर थिंग्स. वो ये देखती है कि उसी के घर की सारी चीज़ों के बीच में वो खड़ी हुई है. शी फेल्ट वेरी मच डिप्रेस्ड. लेकिन ये सारी चीज़ें उसको अब अजनबी लगती हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने एडोरेबल वे में उन सारी चीज़ों को केयरफुली सजा के रखा हुआ था, वो चीज़ें सारे दैट हैज़ बीन अरेंज्ड इन एन टेस्टलेस वे एंड इल मैनर्ड, बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही केयरलेसली वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. शी सेट डाउन नियर द टेबल एंड नोटिस्ड हर वूलन टेबल क्लॉथ. यहाँ तक कि ये टेबल क्लॉथ जो बिछा हुआ है वो भी उसको ध्यान आता है कि ये भी उसी के घर का है. क्यों? बिकॉज इट हैज़ ए वर्न मार्क. एक जला हुआ मार्क उस पर पड़ा हुआ था.
और when she searched about it she finds it, वो पा जाती है. Then she surely feels that all the things she has kept in a dishonest way. The girl prepared tea for her. वो लड़की कहती है कि मैं आपके लिए अभी मैं चाय बना के लाती हूँ. The cups, the teapots with old border laid, the spoon, ये सारी चीज़ें जितनी भी सामने आती हैं, द नरेटर न्यू ऑल ऑफ देम, इन सारी सभी चीज़ों को वो पहचान जाती है. दैट गर्ल शोड हर प्राउडली द एंटीक बॉक्स एंड द सिल्वर प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, सारी चीज़ों को बहुत प्राउडली दिखाती है वो कि देखिए ये मेरे घर का सामान है, कितना अच्छा सामान. द नरेटर हैड नेवर बॉदर टू लुक एट और टच दोज थिंग्स while they were there in her own house. तो जैसे मैंने आपको बताया कि all those things were of very expensive. Spoon, forks, knives she used at the everyday at the time table were made of silver. As the girl went to the sideboard to open a drawer, थोड़ी देर बाद वो गर्ल साइडबोर्ड में जो ड्रॉर लगा हुआ उसको खोलने जाती है, और भी चीज़ें दिखाती है वो. शो हर सिल्वर कटलरी. अब यहाँ पे नरेटर द स्टोरी टर्न हियर. द नरेटर डिसाइडेड टू लीव. नाउ शी डिड नॉट वांट टू वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग. अचानक अब नरेटर के मन में ये आता है कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ, क्योंकि अब उसको ना ही मिसेस डॉर्लिंग में और ना ही उन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट रह गया है. और ऐसा कह के वो बाहर निकल आती है बिना कुछ कहे. वो शी लुक्ड अप एट द नेम प्लेट अगेन. फिर से वो देखती है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. एड्रेस वाज करेक्ट एंड शी रिसॉल्व्ड नेवर टू कम बैक एट दिस एड्रेस. अब वो ये डिसाइड करती है कि अब वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी. ऐसा कह के वो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि वाई द गर्ल वाज इनिशियली सो मच इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग बैक ऑल द थिंग्स, एंटीक थिंग्स, एक्सपेंसिव थिंग्स. वाई शी हैड डिसाइडेड that now she will not be anxious to take all these things back. ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए इसके दो रीज़न हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ दैट हर मदर इज़ नो मोर. पहला रीज़न तो ये है चूँकि उसकी मदर अब जीवित नहीं है. इफ़ शी ब्रिंग्स ऑल दीज थिंग्स अगेन शी वुड बी वेरी मच रिमाइंडेड ऑफ हर मदर. और जब ये अगर ये सारी चीज़ें फिर से ले आएगी तो फिर से उसको उसके मदर की याद आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी मदर से ही एसोसिएटेड हैं. सो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट सो शी डिसाइड दैट शी वुड नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स बैक. सेकंड रीज़न ये है कि देखिए जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम केवल जब तक उनको रखते हैं जब तक किसी व्यक्ति की यादें उनसे जुड़ी रहती हैं. We do not keep all these things associated with the dead people. So she decides, so it is a very emotional turn here that she decides that she would not take any interest, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक उसके घर पे रखी हुई थी, these were sacred, these were holy things. She had arranged all these things, her mother had arranged all these things in a very good way. लेकिन चूंकि अब वो अजनबी माहौल में हैं और किसी के पास हैं, इनको लाना अब वो उचित नहीं समझती. ये सेकंड रीज़न है. सो स्टोरी एंड्स हियर. नाउ वी कम टू द चैप्टर. डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड. आई गर्ल के लिए आ रहा है. क्या आप मुझे जानती हैं? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. चिंक मीन्स नैरो ओपनिंग, बहुत थोड़ा सा खोलना. डोर को थोड़ा सा खोला.
I came closer and stood on the step. मैं स्टेप के पास आके खड़ी हो गई. It is said about the girl. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. Here Mrs. S is the name of the daughter's mother. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. She had no intention to let it enter the girl inside. Her face gave absolutely no sign of recognition. उसके चेहरे पे ऐसा भाव आया that she doesn't want to identify that girl. She kept staring at me in silence. Staring means to look somebody in a continuous manner. घूरना. उन्होंने उसको घूरते हुए देखा. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. I had seen her only once. This is the girl's overview now. She is thinking that she had reached on some wrong address. Perhaps it is not her. मैंने एक बार केवल उनको fleetingly means for a short time. मैंने बहुत शॉर्ट समय के लिए ही उनको देखा था. And that was years ago. बहुत साल पहले. It was most probable that I had rung the wrong bell. ऐसा हो सकता है कि मैंने wrong bell दबा दिया हो. The woman let go of the door and stepped to the side. महिला एक और हट गई वो. And she had opened the door. दरवाजा खुला ही छोड़ दिया. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. The girl now recognized that she is wearing her mother's cardigan and the buttons were pale. वो पहचान गई कि वो उसकी माँ का ही कार्डिगन पहने हुए हैं. But I knew how that I was right. Well, you knew my mother, I asked. मैंने उनसे पूछा क्या आप मेरे मदर को जानती हैं. Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा. Next page. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. उनके पीछे से एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया. एक musty smell. Musty means smelling damp. सीलन वाली स्मेल आना बाहर की तरफ आई. I regret I cannot do anything for you. I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. लड़की ने कहा नहीं मैं आपसे बात करना चाहती थी. मैं आपसे मिलने के लिए ही आई हूँ. It's not convenient for me now. मेरे लिए ये convenient नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, said the woman. I can't see you another time. तुम फिर से आना, फिर कभी आना. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने सिर हिलाया और वापस दरवाजे में चली गई. जैसे लगता I stood where I was on the step. The curtain in front of the way window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. पास में कोई पर्दा हिला और उसमें से शायद किसी ने उस लेडी से पूछा कि ये कौन है, क्या चाहती हैं. अरे कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letter in white enamel. Enamel means a paint. तो black letter में वो white enamel पे, white paint पे words लिखे हुए थे, darling. And on the jamb, a bit higher, the number 46. Jamb means a side piece of a door. और side में उस पे नंबर लिखा हुआ था, मकान नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. जैसे ही मैं स्टेशन की तरफ जाने लगी मैंने अपने मदर के बारे में सोचा जिन्होंने मुझको ये एड्रेस कुछ साल पहले ही दिया था.
It had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the room had changed. तो ये वार शुरू होने के कुछ दिन बाद की ही बात है, फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, कि मैं घर आई थी और मैंने ये ध्यान दिया कि रूम में से कुछ चीज़ें मिस हैं. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स एंड माई मदर वॉज वेरी सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. मेरी मदर को ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने इतनी जल्दी कैसे ये भांप लिया, मैंने कैसे नोटिस कर लिया ये चीज़. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग. आई had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. Acquaintance means familiar, परिचित होना. मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन मेरे मदर ने बताया कि ये मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं. Whom she had not seen for year. कई सालों से उन्होंने उनको नहीं देखा था. And suddenly turned up हुई वो and renewed their contact. Turned up means to appear. अचानक ही वो घर पे आने लगी. And since then she had come regularly. और उसके बाद अब वो रेगुलरली बराबर आ रही थी. Every time she leaves here she takes something home with her, said my mother. मेरी मदर ने कहा देखो बेचारी उनको, वो आती हैं तो मेरे घर से कुछ ना कुछ चीज़ें ले जाती हैं हमेशा. She took all the table silver in one go and then the antique plate that hung there. She had trouble lugging those large vases. तो देखो एक बार में वो सिल्वर टेबल ले गई, यानी कटलरी जो भी होती है, स्पून, नाइफ मेड ऑफ सिल्वर, इन सारी चीज़ों को वो ले गई. और फिर इसके बाद एंटीक प्लेट्स ले गई, और उनको कितनी दिक्कत हुई होगी ले जाने में. परहैप्स शी हैड गॉट ए क्रिक. क्रिक मीन्स स्ट्रेन इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ. शी इवन इंसिस्टेड. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग. और ये सब उन्होंने क्यों किया? Because the war was going on, so she wanted to save all the things from our house. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. उन्होंने कहा कि यदि अचानक घर छोड़ना पड़ा तो कितना लॉस होगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ले जा रही हूँ. Now this girl was not agreed with her mother. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. मैंने पूछा कि क्या आप सहमत हैं इससे कि उनको हमारे घर की हर चीज़ ले जाना चाहिए? As if that necessary, my mother cried. She said in an angry way, it would simply be an insult to talk like that. And think about the risk. She is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. उन्होंने कहा इस तरह से जैसे तुम कह रही हो कितना इंसल्ट होता मुझे पूछने में, और ये भी सोचो कितना रिस्क वो ले रही हैं और फुल सूटकेस पूरा ले जाती हैं, कितना उनको दिक्कत होती होगी. वी शुड बी फील समवॉट ग्रेशियस टुवार्ड्स देम. नाउ नेक्स्ट पेज. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. मेरी मदर को ऐसा लगा कि मैं कन्विंस नहीं हो पाई हूँ. She looked at me reprovingly. Reprovingly means in an angry way. And after that we spoke no more about it. क्योंकि टेंशन का माहौल होने लगा इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली उनसे. Meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar place again for the first time since the war. लड़की कहती है कि मैं स्टेशन पे आ गई और मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया और मैं और कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं सीधे अपने शहर में आ गई. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. कहती है वही चेहरा मुझको ध्यान में आया जब मैंने उनको पहली बार देखा था. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. तो उसको ध्यान आया कि पहली मुलाकात
कब हुई थी? When she had the first meeting with this woman. कहती है कि ये मॉर्निंग था एक दिन का जब मेरी मदर ने बताया, और नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट उठी। जैसे ही डाउन स्टेयर पे आई तो मैंने किसी को बाहर बात करते हुए देखा। अ वुमेन हु हैड ए ब्रॉड बैक, उनकी बहुत ही चौड़ी पीठ थी या कमर। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी वेकेंड टू मी। वेकेंड माने होता है टू कॉल्ड बाई इंडिकेशन, इशारे से बुलाना। उन्होंने इशारा करके मेरी तरफ उस लेडी से कहा कि यही मेरी डॉटर है। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. बिना मेरी तरफ देखे उन्होंने सिर हिलाया और कोट रैक के अंदर उस सूटकेस को रख लिया। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. क्या ये बहुत दूर रहती हैं? मैंने उनके जाने के बाद जब मैंने ये देखा सूटकेस उठाने में किनको कितनी दिक्कत हो रही है, मैंने अपनी मदर से पूछा क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो यही इंसिडेंट है डियर स्टूडेंट्स। जब एड्रेस बताया उन्होंने कहा कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और हाउस नंबर 46 है इनका, इस बात का ध्यान रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसको याद रखा। What I had waited a long time to go there, लेकिन मुझे उन तक पहुंचने में बहुत देर लगी। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. Liberation means after the independence. जैसे मैंने आपको पहले बताया, this stories belong to Holland. तो हॉलैंड जब लिबरेटेड हो गया उसके बाद उस लड़की को थोड़ा ये लगा कि मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझको वापस लाना चाहिए। That she had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. वो सारी चीज़ें जो कवर्ड में और बॉक्सेस में होनी चाहिए उनको फिर से मुझे वापस लाना चाहिए। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened. A room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. लेकिन धीरे धीरे सारी स्थितियाँ फिर नॉर्मल होती चली गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, लाइटर कलर मीन्स ब्रेड फिर से फ्रेश मिलने लगी जब नॉर्मल सी हो गई। सो द गर्ल इज सेइंग दैट यू कुड स्लीप इन एन you can take a sound sleep there without having disturbance. A room with you were more used to glancing at each day. हर दिन आप अपने कमरे को दोबारा देख सकते हैं। And one day I noticed, और एक दिन मुझको ऐसा लगा कि I was became anxious to take all these things. I should go to that address and I wanted to see them, touch and remember. So the girl had decided that she would go to Mrs. Dodling again and she would bring back all those costly things. So dear student, that's enough for today. Thank you very much.